2015 में our firm completed 30 years, and after completing 30 years around, they decided that we have to do some CSR activity. Since there was a specialization in energy sector, we decided we will identify the biggest challenge in the world in energy sector and try to resolve it by taking steps in that direction, and that will be the lifetime commitment of our organization. Instead of we deciding, we said let experts decide as to what is the biggest challenge in the world in energy sector. So हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, wherein we invited experts from North America, Europe and Asia, East Asia, Australia, and obviously India में regulators and generation company, transmission companies, all energy companies. And only one objective was given to them, to identify the biggest challenge in the world in energy sector. Once debate happened, so 5:30 baje, finally it was concluded, and we said ki bhai, okay, what is the outcome of the expert body? The expert body had a very different understanding than what we had thought. We had thought that theft of electricity is the biggest challenge, or poor financial condition of electricity distribution company is the biggest challenge. We also discussed that unavailability of energy storage is the biggest challenge. We said that climate change may be the biggest challenge in the world for energy sector. So a lot of things were in our mind. But the expert said that most of your answers are incorrect. The biggest challenge in energy sector, they said, are 3, not 1. And we are not able to decide which is the biggest challenge. So they said the 3 biggest challenge, one of them is 1.2 billion people across the world do not have access to electricity. We are all blessed that we have electricity at our homes. We can watch each other, we can do online classes, we can discuss, the AC is running, fans are running, and we can study at night also, and a lot of other facility associated with electricity. But 1.2 billion people across the world do not have access to electricity. बिजली नहीं है घर में. Second challenge which they identify, जो last session में भी अभी मैंने बताया था, 3.2 billion people across the world do not have access to clean fuel to cook food. So mothers cook food using cow dung cake and wood. While using cow dung cake and wood to cook food, they inhale poisonous gases. When they cook food for us, they inhale poisonous gases. It is called indoor pollution. And they don't inhale the poisonous gases alone. The child of 1 day to 10 years has no place to go. He or she also sits with the mother, and he and she also inhales all the poisonous gases. The World Bank report 2017 said that 5 million people every year die because of this problem. आप मुझे बताइए अगले पिछले 3 साल में कोविड में कितने लोग मरे? So, जो 3 साल में नहीं हुआ वो हर साल हो रहा है because of energy issue. All right. Third challenge which the experts identified is that if in India the per capita power consumption is 500 units to 1500 units per person per annum, then in North America and Europe the per capita power consumption is 15,000 to 30,000 per person per annum. This gap, 500 to 1500, 15,000 to 30,000, this gap is called energy poverty, urja garibi. So these are the 3 biggest challenges. Unlike what we were thinking something else actually. And we used to consider ourselves expert in energy sector for last 35 years. But when experts got together, they said, no, nothing doing. This is not correct thinking. These are the real challenges which have to be resolved. And ये सारे challenges CSR के challenges, corporate social responsibility. Okay, all right. अब जब ये 3 challenges identify हो गए, तो हमने कहा कि we have to do something and to make it lifetime commitment. जिंदगी भर हर दिन एक छोटा स्टेप लेते रहेंगे to resolve this issue. अब इसके लिए हमें एक इकोसिस्टम चाहिए था. उस इकोसिस्टम के लिए हमने एक
ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम रखा डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन, DGEF। जो आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं वो सब DGEF के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो उसको अपलोड करते हैं। तो मेरी जो रिकॉर्डिंग होती है अक्रॉस द वर्ल्ड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, मे बी शंघाई, सिंगापुर, हांगकांग, एंड व्हेन आई एम गिविंग लेक्चर्स ऑन रेगुलेटरी एस्पेक्ट और एनर्जी सेक्टर, जो उनको ठीक लगता है, जो उनको लगता है वो काम का है दूसरा, वो क्या करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग क्लिप लेके अपलोड कर देते हैं। ऑल राइट, सो दिस वहीं से आप कार्बन ट्रेडिंग का और जो ग्रीन क्रेडिट के जो वीडियोस प्रशांत ने भी अपलोड करे हैं वो वहीं से अपलोड करे हैं। और आपके लिए भी एक रिसोर्स है, अगर आपको कभी भी एनर्जी सेक्टर के बारे में कुछ भी जानना हो, यू कैन गो टू दैट चैनल। इट इज अ फ्री चैनल, उसमें अराउंड 300 आसपास वीडियोस है और हर एस्पेक्ट पे वीडियोस है एक्चुअली। ऑल राइट, सो ये एक छोटा सा पार्ट है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट करी, सो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के समय जो मैंने आपको बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव CSR के लिख दिए गए, बट हमें एनर्जी सेक्टर में काम करना था। सो हमने ये उसमें 13, 14, 15, 16 ऑब्जेक्टिव्स जो एनर्जी सेक्टर के हैं स्पेशली, उनको इलैबोरेट करके लिखा। सो फर्स्ट जो हमारी डीड है, जिस तरह से आप अपने ट्रस्ट, अपनी सोसाइटी, अपने सेक्शन 8 कंपनी या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की डीड बनाने हैं, वैसे ही डीड बनाएगी फर्स्ट स्टेप में। अब डीड बनाने के बाद फर्स्ट इशू जो आया वो ये आया कि आवर फर्म वांटेड टू डोनेट फंड्स टू द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास तो बैंक ही नहीं है। सो इसलिए डीड में ये भी इंक्लूड करा गया ऑथराइजेशन के लिए। और जब हमने बैंक से बात करी, HDFC बैंक से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने ये सजेस्ट करा कि आप डीड में लिख दीजिए कि HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर बैंक, सो दैट हम अकाउंट खोल देंगे। उस डीड को जो है, उस डीड को लेकर हम अकाउंट खोल देंगे। तो हमने डीड बना ली। डीड बनाने के बाद जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लिए, तो फिर ये चॉइसेस हमारे पास आ गए कि वेदर वी वांट टू मेक इट अ कंपनी, वेदर वी वांट टू मेक इट अ ट्रस्ट, वी वांट टू मेक इट अ सोसाइटी। नेशनल सोसाइटी बनाने के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत है, और हमें ये लगा कि 8 मेंबर्स हम 8 स्टेट से ढूंढेंगे एंड वो सोसाइटी बनाएंगे, तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो हमारा 3, 4, 5 महीने लग जाएंगे। फिर हमने सोचा सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं, पर सेक्शन 8 कंपनी बनाने में ये चैलेंज था, उसके कंप्लायंसेस बहुत सारे थे। सो कंपनीज एक्ट में 150 प्लस कंप्लायंसेस करने हैं, एनुअल जनरल मीटिंग भी करवानी है, और भी बहुत सारे कंप्लायंस कंटिन्यूअसली कर ले। सो वो कंप्लायंस का ही खर्चा हर साल का 50 से 1 लाख रुपए था। हमने कहा इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट मनी टू एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, let us utilize that funds for the foundation's activity, whatever is the objective. So हमें सबसे आसान और सिंपल रास्ता मिला कि एक काम करते हैं, ट्रस्ट बना देते हैं। ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन सिंपल है, और 2 persons can go and register the trust. So it became as simple कि 2 पार्टनर्स फर्म के जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस पे, और वो ट्रस्ट डीड को रजिस्टर कर लेंगे, एंड इट विल बी डन, योर ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड। सो आफ्टर making the objectives, we said okay, we will make a trust. So हमने उसको ट्रस्ट डीड में कन्वर्ट कर दिया। ट्रस्ट डीड में ऑथराइज पर्सन लिख दिया हमने, बैंक को नोटिफाई कर दिया, हमने बोला एनुअल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, और ऑडिटिंग हम शुरू से फर्स्ट डे 1 ऑनवर्ड ऑडिटिंग करेंगे, फुल्ली कंप्लायंट ट्रस्ट बनाएंगे और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। सो अ ट्रस्ट वाज रजिस्टर्ड इन 2015। ट्रस्ट रजिस्टर करने के बाद जब हम बैंक के पास गए तो बैंक ने ऑथराइजेशन मांगा था, वो भी हमने इंक्लूड कर लिया था। बैंक की सेकेंड रिक्वायरमेंट थी, बिफोर विदाउट अ पैन कार्ड वी विल नॉट रजिस्टर योर, और वी विल नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रेशन, तो एक रिक्वायरमेंट थी, इट शुड बी अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, नंबर 1। दूसरी रिक्वायरमेंट थी, it should have its own independent PAN card, permanent account number। ये 2 रिक्वायरमेंट बैंक की थी। तो हमने उसको ट्रस्ट डीड को बनाने के बाद, इसमें इंक्लूड करने की बैंक की रिक्वायरमेंट इंक्लूड करने के बाद हम गए रजिस्ट्रार ऑफिस पे। और सब दिल्ली में ये होता है कि जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है,
सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जिस तरह से आपकी सेल डीड रजिस्टर होती है, जिस तरह से आपकी लीज डीड रजिस्टर होती है, जिस तरह से आपकी विल रजिस्टर होती है, सिमिलरली ट्रस्ट डीड रजिस्टर होती है। सो ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने पूछा कि कितने स्टैम्प पेपर लगेंगे, तो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ट्रस्ट डीड रजिस्टर होगी। ट्रस्ट डीड रजिस्टर होने के बाद 1 हफ्ते बाद वो हमें रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड मिल गई। रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड भी जब हम बैंक के पास लेके गए, उन्होंने बोला नहीं, हम सिर्फ बिना पैन कार्ड के नहीं करेंगे, आपका बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। सो देन सेकेंड स्टेप आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट डीड, वी अप्लाइड फॉर गेटिंग अ पैन कार्ड। पैन कार्ड का पहले नोडल ऑफिस हुआ करता था, अब वो ऑनलाइन हो गया है। सो पहले आपको जा करके दिल्ली में अलग अलग जगह पे ऑफिसेस थे, वहां पे आपका ट्रस्ट डीड, आपके जो भी ट्रस्टीज है उनकी केवाईसी, सोसाइटी में एक और चैलेंज था कि 8 लोगों की केवाईसी आपको देनी थी। 8 लोगों को सोसाइटी के रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट होना था, पर ट्रस्ट में ये सारे नई चीजें रिक्वायरमेंट नहीं थी। आपको जब रजिस्ट्रेशन के सामने वो ट्रस्टीज जो है वो 2 ही प्रेजेंट हो जाए काफी है। उसके बाद जब पैन कार्ड का, तो पैन कार्ड की अटेस्टेड कॉपीज लेके आप फाइल कर देंगे, दैट इज इनफ। तो उस समय फाइल करनी थी 2015 में, आपको ऑनलाइन ही फाइल करनी है। तो हमने उसको फिजिकली फाइल करा, उस समय की बात कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन फाइल करेंगे। एंड करीब 15 दिन बाद प्रोविजनल हमें पैन कार्ड मिल गया। A true copy of the registration was submitted to bank. बैंक ने ट्रस्टीज की केवाईसी मांगी, मतलब आधार और पैन कार्ड, that's it। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक अकाउंट 2 जगह पे खुल गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और HDFC बैंक। So we were fully operational. Now our firm can donate to the foundation DGEF. तो फर्स्ट डोनेशन DGEF को दे दिया गया और वो बैंक में क्रेडिट हो गया, चेक इशू कर दिया गया। अब जब ये बैंक में क्रेडिट हो गया, जो ये रजिस्ट्रेशन हुआ था वो करीब अगस्त में हुआ था, और क्योंकि वो अगस्त में हुआ था तो 31 मार्च के बाद हमें रिटर्न्स भरनी थी। ऑलराइट, 31 मार्च में अब इसमें एक कंसर्न ये था कि जो भी पैसा डोनेट करा गया है, अगर उसके एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं तो इट इज योर प्रॉफिट, इट इज योर इनकम। सो ऑल लाइबिलिटीज, जो इनकम है उसमें आपने तो एक टैक्स फ्री जो कमाया आपने किसी ने डोनेट कर दिया, उसको आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया, लेकिन वहां पे डबल टैक्सेशन हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए डोनेट करा है, वहां पे इट इज इनकम ऑफ द ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वो 1 लाख रुपए में से 30,000 बोल रही सरकार, आप रिटर्न फाइल करिए और रिटर्न फाइल करने के बाद वो सरकार को दे दीजिए। अगर आपने उसके एक्सपेंसेस कर लिए हैं, अगर 1 लाख रुपीज आपने स्पेंड कर दिए तो आपका टैक्स नहीं, बिकॉज वो जीरो हो गया। जितनी इनकम हुई उतने एक्सपेंसेस हो गए, बराबर हो गया। तो फर्स्ट ईयर में हमारे सारे पैसे एक्सपेंस में आ गए थे, इसलिए हमारा टैक्स नहीं लगा, और हमने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, अपनी कंप्लायंस कंप्लीट कर दी फर्स्ट ईयर। ऑलराइट, अब फर्स्ट ईयर की कंप्लायंस करने के बाद हमें ये रियलाइज हो गया कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर हमें सब जगह से डोनेशन मिलता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से डोनेशन मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डोनेशन मिलता है, और वो जो डोनेशन अमाउंट को हम स्पेंड नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, और या हम सोचते हैं कि हम अगले साल स्पेंड करेंगे या कोई और प्रोग्राम बनाते हैं, इन दैट केस इट बिकम्स टैक्सेबल। सो हमने नेक्स्ट 1 साल की एनुअल रिटर्न ले करके 12A की एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल कर। उस समय फिजिकल एप्लीकेशन होती थी, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई 12। ऑलराइट, वो पहले फिजिकल थी, अब ऑनलाइन सारी चल रही, रिन्यूअल था, सब ऑनलाइन हुआ है। 12A का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें करीब 3 महीने लग गए थे। अब जो मैंने सुना है वो जल्दी हो जाती है, वो प्रोविजनल इमीडिएटली दे देता है और 2-3 महीने में फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको दे देता है, ऑनलाइन होता है 12A का। उसके बाद जब ये हो गया तो नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि भाई देखो, वो सेविंग इंस्टीट्यूशन तो नहीं था, तो जो एक्टिविटीज होती थी हम उसमें सारा का सारा इन्वेस्ट कर देते थे, क्योंकि काम हमारे पास ज्यादा होता था, फंडिंग ऑलवेज शॉर्टफॉल रहता था। ठीक है, बट जो ऑर्गेनाइजेशन, सो जितनी भी PSUs हैं और जो प्राइवेट, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये कहना था कि सर हमें टैक्स एग्जेम्पशन क्या मिलेगा
एटीजी का, तो हम ये बोलते थे कि भाई हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है एटीजी का, आपको टैक्स एग्जेम्पशन जो भी आप देंगे वो टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने एटीजी की डाली। एटीजी की भी एप्लीकेशन की रिजल्ट आने में और सर्टिफिकेट आने में हमें करीब 3 महीने लग गए। तो 3 महीने में हमें पूरा सर्टिफिकेट मिल गया 12A का 3 महीने में, फिर अगले 3 महीने में एटीजी का सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल था। अब हमने ग्रीन में अपनी रिसिप्ट में लिख दिया कि जो भी हमें डोनेशन देगा या जो भी इनकम आएगी उसको यू कैन अवेल टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम दैट। सो ये नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चैलेंज ये आया कि 2-3 चैलेंजेस। एक तो नंबर 1 ये जो गोल्स थे कि 1.2 बिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, 3.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन फ्यूल टू कुक फूड। थर्ड गोल था एनर्जी पॉवर्टी। इनको रिमूव करने के लिए द फाउंडेशन कैन प्ले अ facilitator's role, because these are the activities which World Bank, Government of India, state government and very large corporates will play. It is not very small companies or small initiatives इसमें involved नहीं है if we want to reach that. And हमने कहा कि ये अगर इसको एक समझ लो एक revolution बनाना है कि everybody adopts it, we have to create some certain activities. और हर रेवोल्यूशन में अगर एनालाइज करा जाए तो लॉयर्स हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हमने कहा कि सबसे पहले लेट अस एजुकेट लॉयर्स कि भाई ये जो एनर्जी क्राइसिस है, 1.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, 3.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव क्लीन फ्यूल टू कुक फूड, फिर उसके बाद देयर इज एनर्जी वाइड स्प्रेड एनर्जी पॉवर्टी। लेट अस क्रिएट एंड दूसरा एक और चीज हमने रियलाइज करी, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड है वो विमेन है। भाई 3.2 बिलियन, तो उनकी सबसे ज्यादा लाइफ रिड्यूस अगर विमेन हो रही है बिकॉज ऑफ एनर्जी इश्यूज, वो विमेन की सबसे ज्यादा लाइफ रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ इंडोर पॉल्यूशन। तो लेडी लॉ स्टूडेंट्स के लिए हमने कॉम्पिटिशन स्टार्ट करा। उस कॉम्पिटिशन का नाम था टीला इंटरनेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑन एनर्जी एंड इंटरनेशनल लॉ। We signed a MOU, Memorandum of Association, with Banasthali Vidyapeeth University. Banasthali Vidyapeeth University is the largest residential women's university in the world, which is near Jaipur. So वहाँ पे हमने एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन करा और पूरे वर्ल्ड से लेडी लॉ स्टूडेंट्स को इनवाइट करा। जो पार्टिसिपेशन अगर जजेस का और लेडी लॉ स्टूडेंट्स का हम बात करें तो क्योंकि हमारी स्टार्टिंग थी तो बांग्लादेश से पार्टिसिपेशन आया, जजेस हमारे श्रीलंका से आए, श्रीलंका के चीफ जस्टिस हमारे चीफ गेस्ट थे, फिर यूएई से आए, फिर चाइना से आए, फिर ऐसे कर करके देर टीम बनाई गई। वो जब कंपटीशन में उतरे सब लोग और जब डिस्कस हुआ कि ये क्राइसिस है एंड वी हैव टू डिस्कस दिस, तो जो लेडी लॉ स्टूडेंट्स ने जजेस के साथ मिलके एक डिक्लेरेशन बनाया, जिस डिक्लेरेशन को हम बोलते हैं राइट टू एनर्जी डिक्लेरेशन। सो जितने भी राइट्स पूरे वर्ल्ड में, अब हम ये एक एक्चुअल एग्जांपल देख रहे हैं कि हाउ दिस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इवॉल्व्ड। सो 2 केस स्टडीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उन 2 केस स्टडीज में डिफरेंट एस्पेक्ट्स के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे इवॉल्व हुए हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं, क्या क्या उनके चैलेंजेस आए हैं, कैसे उन चैलेंजेस को सॉल्व करा है, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उनमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मूव्स फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो अब जो ये मूड कोर्ट कंपटीशन करा गया, उन्होंने एक राइट टू एनर्जी डिक्लेरेशन बनाया। राइट टू, जितने भी आप राइट्स देखेंगे जो सिटीजन्स को अक्रॉस द वर्ल्ड मिले हैं, ऑल राइट्स हैव ओरिजिनेटेड आइदर इन नॉर्थ अमेरिका व्हिच इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स, और यूरोप जैसे मैग्ना कार्टा जो फ्रांस में था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स आप देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम दीज कंट्रीज। सो मैक्सिमम हमने अडॉप्ट करा है यूरोप से और यूएसए से, कुछ हमने अडॉप्शन करा है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से, बट देन मैक्सिमम वहां से हमने अडॉप्ट करा है। इंडिया में इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में
फर्स्ट टाइम जो राइट टू एनर्जी आया वो इंडिया से आया। तो राइट टू एनर्जी का एक डे भी बनाया गया जिसको हमने बोला 15th of April, राइट टू एनर्जी डे। ऑलराइट, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू एनर्जी डिक्लेरेशन वाज दैट energy, right to energy should become fundamental right in all the constitutions of the world, and it should be included as a basic human right in the Universal Declaration of Human Rights. ये ऑब्जेक्टिव लिखा गया एंड ये एक सॉल्यूशन पाया गया इन तीनों चैलेंजेस। इन तीनों चैलेंजेस के लिए सेंसिटाइजेशन के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्टेट डिस्कसेस इट. इफ द स्टेट डज नॉट डिस्कस देन दिस राइट टू एनर्जी विल नॉट हैपन एक्चुअली. सो हमने ये मोटिवेशन, तो हमने इसको ऑब्जेक्टिव बना लिया कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाउंडेशन इज टू मेक राइट टू एनर्जी अ फंडामेंटल राइट इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड to encourage and to suggest the countries to have a United Nations General Assembly में एक पूरा सेशन बुलाने के लिए, और उस सेशन में राइट टू एनर्जी डिक्लेरेशन, राइट टू एनर्जी डिस्कस करें और उसको अडॉप्ट करें एज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अभी तक है नहीं है एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग. आप एक चीज सोचो कि बचपन से हमें ये बताया गया है कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या क्या है सर. ये बताया है कि रोटी कपड़ा मकान इज द बेसिक नेसेसिटी. लेकिन अगर आपको किसी आइलैंड पे छोड़ दिया जाए, जैसे एक कहते हैं कि भाई आपको जैसे डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक में हम देखते हैं कि आइलैंड पे बंदे को छोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले वो क्या ढूंढता है? खाना. सो दैट इट इज करेक्ट कि रोटी इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग विच ही सर्चेस इज नॉट कपड़ा और मकान. He searches for fire, energy. So ये जो definition है रोटी कपड़ा मकान और basic necessity is like flawed. इसमें थोड़ी सी ना improvement की जरूरत है. जो better definition होगी it will be रोटी ऊर्जा कपड़ा मकान. It is a basic necessity. और हमें ये सरप्राइज था कि जब ये इतनी basic necessity है तो क्यों किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं लिखा गया है इसको? सब कुछ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट. आप किसी भी एस्पेक्ट की बात कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखा है, लेकिन एनर्जी के बारे में किसी ने बात नहीं करी. और ये बड़ा सरप्राइजिंग था. वन ऑफ द रीजंस व्हिच वाज डिस्कस्ड व्हाई इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज नॉट डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, उसका रीजन ये है कि इट इज अ विमेन इशू. एंड क्योंकि घर में माँ और पीछे बैठ के खाना, सामने तो आप इलेक्ट्रिसिटी लगा लेते थे बट उसके लिए क्लीन फ्यूल नहीं रहता था. माँ के लिए क्लीन फ्यूल नहीं था, वो खांसेगी पीछे बैठ करके. सो उसको फोरफ्रंट में लाना वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. और उसको फोरफ्रंट में लाने का एक रास्ता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना, एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए फाइट करो. वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनते बनते इतना डिबेट और डिस्कशन हो जाएगा कि अपने आप इट विल बिकम अ मेजर इशू. ऑल राइट. सो एक स्टेप हमारा ये हुआ राइट टू एनर्जी डिक्लेरेशन. फर्स्ट क्लास. अब ये फिर कंपटीशन हमने मूड कोर्ट कंपटीशन कंटिन्यू रखा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं. अब जब फोर्थ फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करेगा अप्रोप्रिएट टाइम में, देन इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ टाइम. सो दिस वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ द फाउंडेशन, नंबर 1. एंड वी ट्राइड टू मेक इट सेल्फ सफिशिएंट. अब दूसरा इशू ये था हमारे पास कि किस तरह से वी कैन एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर. सो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर लिया है, उनका पर कैपिटा भी बहुत हाई है, लेकिन इंडिया में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है. अब उसमें इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए हमने ये डिसाइड करा कि फाउंडेशन विल एवरी ईयर ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था टीला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फेक्स ऑन एनर्जी. कॉन्फेक्स का मतलब कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन. उस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन में फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल फ्रॉम एनर्जी सेक्टर विल पार्टिसिपेट. व्हेन पीपल फ्रॉम एनर्जी सेक्टर विल पार्टिसिपेट, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे जनरेटिंग कंपनी हो, ट्रांसमिशन कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, रेगुलेटर्स हो, और all entities connected with the energy sector, then there will be more investment, more discussion in energy sector, and obviously if there will be more investment and more discussion, right to energy or access to energy will improve. So हमने ये competition, ये
कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी जिसका नाम था टाई-स्टीला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी। ऑलराइट, अब थर्ड इशू ये था कि कब तक डोनेशन से चलेगा। वी वांटेड टू मेक इट सेल्फ सफिशिएंट, टिकाऊ बनाना चाहते थे। टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल। द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज हैव इट्स ओन फंड, किसी की जरूरत ना पड़े, डोनेशन मांगने की जरूरत ना पड़े। हम सोसाइटी में ही इतना वैल्यूएशन ऐड कर दें कि उसका जो कंट्रीब्यूशन आए उससे हमारे 4-5 एम्प्लॉइज और हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफिस प्रीमाइसेस चलता रहे। तो उसका रास्ता खोजना शुरू करा। जो एक्सपर्ट्स थे, जो कॉन्फ्रेंस में आए थे और जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में मिले थे, उन्होंने ये कहा कि आपकी फर्म के पास एनर्जी लॉज और पॉलिसीज और एनर्जी टेक्निकल में आपकी एक्सपर्टाइज है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ऑनलाइन कोर्सेज चला दीजिए। आपके टीम मेंबर्स को फ्री टाइम देना पड़ेगा उस ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाने के लिए, बट whatever contribution is received from all the power companies, NTPC, NHPC, PGCIL or any other company, solar, wind, hydro, that contribution will help in sustenance to make it sustainable for the foundation to exist for entire जब तक चलाना है आपको 50 साल तक, and to promote right to energy and to conduct this moot court competition and also to conduct the conference and exhibition. Then 2016 में ऑनलाइन कोर्स रिलीज करा गया on various aspects of law or various aspects of policy, various aspects of technical aspects also. So जो हमारे फैकल्टीज हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे या बहुत छोटे ऑनरेरियम में करते हैं, लेकिन जो भी फंड्स आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जहां पे ऑफिसर्स नॉमिनेट होते हैं, दैट गोज फॉर सस्टेनेंस ऑफ द फाउंडेशन। ऑलराइट, सो क्या हो गया, तो जो फाउंडेशन है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वो सस्टेन हो गई। लेकिन जब नॉमिनेशन गवर्नमेंट से आया, सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से आया, तब उनकी एक रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने बोला कि हम फंडिंग तभी कर सकते हैं जब आपका नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन। तो नीति आयोग में तब तक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो गया था, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फाइल करा, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने के बाद नीति आयोग में हमने रजिस्ट्रेशन यूनिक आईडी नंबर लिया। यूनिक आईडी नंबर लेने के बाद नाउ ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन सेंड देयर ऑफिसर्स फॉर ट्रेनिंग, and whatever contribution they give, we can give them unique ID with this the voluntary work and we'll take it as a contribution from yourself. अब नेक्स्ट इशू आया कि भाई अगर CSR फंड्स के लिए आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट से फंडिंग लेनी है, जो उनका CSR मैंडेट है, मैंडेटरी CSR की बात कर रहा हूं, इन दैट केस MCA का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। MCA का रजिस्ट्रेशन भी 2021 तक ऑनलाइन हो गया था, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के और MCA का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी आई, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया में होने वाली थी। उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को एंड एनर्जी सेक्टर से कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस को कराने के लिए फाउंडेशन ने एप्लीकेशन लगाई, पर वहां पे पूरे वर्ल्ड से अलग अलग कंट्री से कंट्रीब्यूशन आने की चांसेस थी। इसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, हमने कहा कि हम बार बार क्यों एप्लीकेशन लगाएंगे, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में एप्लीकेशन लगाई, और 1 साल बाद FCRA का रजिस्ट्रेशन आ गया। नाउ द फाउंडेशन इज एलिजिबल टू टेक फंडिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विदाउट फियर ऑफ फेवर। रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड एवरी ईयर आफ्टर 31st of March. All right. In addition to above, पार्टनरशिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्टार्ट हो गई। सो जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस थी अक्रॉस द वर्ल्ड, दे वांटेड टू डू सम पार्टनरशिप विद द फाउंडेशन TGA। उस केस में इट वाज इंपॉर्टेंट दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो लोगो है, जो नाम है फाउंडेशन का, इट शुड बी प्रोटेक्टेड। सो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन लगा दी गई। ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन लगाने के बाद डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन और DGEF के लोगो दोनों को रजिस्टर करा गया, प्रोटेक्ट करा गया। प्रोटेक्शन के बाद नाउ वी हैड अ राइट टू गिव आवर लोगो राइट्स टू एवरीवन। एक तो R लिख सकते हो आप रजिस्टर्ड, सो नोबडी इन द वर्ल्ड और नोबडी नॉट वर्ल्ड, नोबडी इन इंडिया कैन यूज द वर्ड DGEF
Nobody in India can also use the word Dr. Gopal Energy Foundation क्योंकि हमने वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है। और अगर किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, जहाँ पे आपको पार्टनरशिप करनी है, तो आप एक लेटर लिख के उनको राइट्स दे सकते हो, लोगो राइट्स और पार्टनरशिप राइट कि भाई यू कैन यूज योर माई लोगो बिकॉज वी आर पार्टनर्स इन योर whatever program you are organizing, so the logo and identity is also protected. All right. So मैंने एक आपको पूरा एग्जांपल दिया है कि क्या चैलेंज आया था, उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या कंप्लायंसेस करे गए, फिर कौन कौन सी एक्टिविटी क्या सोच के इंक्लूड करी गई, फिर कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट करे गए। एक इनिशिएटिव था कंपटीशन ऑफ लेडी लॉ स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड TILA इंटरनेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन ऑन एनर्जी एंड इंटरनेशनल लॉ। दूसरा जो इवेंट था या फ्लैगशिप प्रोग्राम था वो कॉन्फ्रेंस था, वो TILA इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी, एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी। तीसरा जो फ्लैगशिप एक्टिविटी थी वो फ्लैगशिप एक्टिविटी को कहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स टू मेक द फाउंडेशन सस्टेनेबल। सो उसमें करीब 50 कोर्सेज, ऑल कोर्सेज आर ऑनलाइन। सो ये 3 एक्टिविटीज करी गई एंड इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस कि जब जब जो नई चीज मिलेंगी गोल को अचीव करने के लिए, द फाउंडेशन एंड द पार्टनर्स और ट्रस्टीज कैन डिसाइड कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। सो आई हैव गिवन यू example of how one voluntary organization grew, और सारे voluntary organization जो long term sustainable होते हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई आइडिया होता है, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। Now right to energy has become a movement. जब भी हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जाते हैं तो राइट टू एनर्जी इज डिस्कस्ड। राइट टू एनर्जी का डिक्लेरेशन प्रेजेंट करा जाता है जो भी स्पीकर होता है। सो अब धीरे धीरे इट इज कैचिंग अप। 4, 5, 6 साल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी इसका डिस्कस होगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी इसका डिस्कशन होगा कि राइट टू एनर्जी शुड बी इंक्लूडेड। कोर्ट्स में डिस्कशन होना शुरू हो गया है। सो राइट टू इलेक्ट्रिसिटी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया इट इज डीम्ड टू बी राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द राइट टू लाइफ। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अब राइट टू इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज वर्क इन प्रोग्रेस वेयर द फाउंडेशन इज वर्किंग। ऑल राइट, सो आई कंक्लूड माय फर्स्ट केस स्टडी।